سب سے پہلے تو دل مراد عمرانی آپ کا شکریہ کہ آپ خصوصاً استا محمد سے آئے اظہار یکجہتی کے لیے اور اس اہم مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے. جس طرح آپ کو تاج بلوچ نے سارے مسائل کا سارے سچویشن کا بریفنگ دیا. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان دل مراد عمرانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت موجود ہوں اللہ والا چوک پہ اور زرعی ترقیاتی بینک ڈیرہ مراد جمالی. آپ میرے بیک میں دیکھ رہے ہوں گے رشید بلوچ سوشل ورکر جو موذی بیماری میں مبتلا ہے، جس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو اس کو گلے کا کینسر ہوئے یہاں پہ کیمپ لگا ہے اس کی مدد کے. لیکن جو انتظامیہ لیکن حکومت کی جو خواب خرگوش میں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنے مدد آپ انسانیت کی خاطر یہاں پہ چندہ برائے رشید بلوچ کے لیے ڈونیشن کا عمل ملائی ہے. یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیمپ لگایا گیا ہے. یہاں پہ کامریڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تاج بلوچ اور دیگر اعجاز بلوچ اور دیگر دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئیے یہاں پہ کچھ جو کیمپ میں موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر، رشید بلوچ کے لیے آپ کیمپ میں موجود ہیں. آج یہ حکومت کا کام ہے لیکن حکومت پتہ نہیں کیوں خواب خرگوش میں ہے. بہت ٹائم سے بیمار ہیں. جو اپنی مدد آپ سوشل ورکر ہمارے جو نصیر آباد کے دوستوں نے ایک چندہ برائے رشید بلوچ کے لیے شروع کیا، اس کے حوالے سے مہربانی. آپ نے جو سوال کیا تھا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم تو حیران ہے کہ گورنمنٹ خاص کر کے بلوچستان میں، اور جگہ پہ میں بات نہیں کروں گا، پورے بلوچستان میں ہمیں ایسے کوئی ہی اسپتال نہیں ملا ہے جو کہ عام طبقے کے غریب کو اس پہ سہولیت ملے. آج میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، یہاں پہ وہ غریب طبقہ ہے جو کہ میرے علم میں ہے، یا بہت سے ہمارے بچے کینسر میں ہیں، شکار ہے، اور اس کے لیے اللہ نے رشید کو صحت دے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض بھی ہے. ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں کہ نامعلوم شدہ یا ان کے نام نہیں ہے، یہاں پہ تو ایسے گھر ہیں اجڑ گئے ہیں، اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہے. تو میں حیران ہوں کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو ادویات کر رہے ہیں. اللہ کرے ہمارے ہند سرکار بابا کو یہ خواب خرگوش سے نکل کر کم از کم بلوچستان میں ایک سرکاری سطح پہ کینسر اسپتال نصیر آباد ڈویژن میں ہو. مگر ہمارے جو سرکار بابا ہے، آج آپ نے دیکھا بلدیاتی الیکشن میں کتنے لوٹ کسوٹ پیسوں کے ریل پیل ہوئے، مگر ان کو رشید کا خیال نہیں آیا. اس نامعلوم یا بے نام گمنام بچوں کا ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ان کی حالت کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہے ہیں. یقیناً اللہ آپ لوگوں کو اجر دے گا. آمین. آپ جو یہ ویڈیو چلا رہے ہیں یا آپ فیس بک پہ دے رہے ہیں، سب سے زیادہ اللہ آپ لوگوں کو اجر دے گا. آمین. یا ان کے لیے چندہ کر رہے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک ادارہ بنائیں. اس سرکار کے اوپر یقین نہ کریں. آپ تمام نوجوان ایک ادارہ بنا کر اس کے لیے جتنا کوشش ہو سکے وہ گمنام نامعلوم بچوں کا بھی ادویات ہو سکے. میری دعا ہے کہ جتنے بھی کن کن مرض میں ہے
उन गरीबों को अल्लाह सेहत याब दे और अल्लाह उनको सेहत दे। हमारे यहाँ जो बड़े लोग कहते हैं, बड़े लोग आप लोग हैं, मैं उनको नहीं कहता हूँ चलो उसके पास बॉडीगार्ड हैं, उसके पास पैसे उनके रहल पहल है, मगर आप लोग बड़े हैं जो इस कैंप में बैठे हुए हैं, उनको अगर कोई कांसी का होगा वो शायद जाकर कराची में टेस्ट कराएंगे। उनको कोई नज़ला और बुखार होगा वो यहाँ के डॉक्टरों से नहीं, वो कराची में जाकर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कि मुझे बुखार हुआ है। फिर हम भी जाकर उनके हाल पुरसी करते हैं कि मीर साहब को क्या हुआ, मीर साहब को क्या नहीं हुआ। खुदारा इन चीज़ों पे निकले, अपने आने वाले नस्ल के लिए सोचें, कोशिश करे, एक मुहिम चलाए कि यहाँ पे कैसर अस्पताल की मंजूरी तक हमारी जदोजहद रहे और उन लोगों को आप वोट दे जो कि आपका मदावा हो सका। सर रशीद बलोच के लिए, हुकूमत के लिए कोई पैगाम देंगे? मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वफाक से अपील करता हूँ कि रशीद बलोच समेत हमारे जितने भी नसीराबाद हो, जलमक्सी हो, लाड़ी हो, भाग हो, इनके लिए कोई ऐसा बेनिफिट फंड फौरी तौर पर मंजूर करे ताकि हमारे नस्ल को इस मूजी मर्ज से बचाया जाए। ये थे ताज बलोच जो अपने रशीद बलोच के हवाले से कमेंट्स दे रहे थे। इसका बिल्कुल हमारे नज़दीक एजाज बलोच भी मौजूद हैं। तो 21 तारीख से लोगों ने यहाँ चंदा डोनेशन फॉर रशीद बलोच, चंदा पर रशीद बलोच के लिए इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पे कैंप लगे है। जो अपनी मदद आप दोस्तों से कंट्रीब्यूशन लेकर उसके लिए रवाना के कुछ पैसे भी रवाना कर दिए थे। तो हकीकत में जिस तरह ताज बलोच ने ये कहा है कि ये हुकूमत पता नहीं क्यों ख्वाब खरगोश में है, तो आइए एजाज बलोच से तो कुछ इस हवाले से बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो दिलमुराद उमरानी आपका शुक्रिया कि आप खुसूसन उस्ताद मोहम्मद से आए इज़हार यकजहती के लिए और इस अहम मसले को उजागर करने के लिए। जिस तरह आपको ताज बलोच ने सारे मसाइल का, सारे सिचुएशन का ब्रीफिंग दिया, तो बिल्कुल यकीनन अगर यहाँ हुकूमत की नाम की कोई चीज़ होती, यहाँ अगर हमारे इदारे काम कर रहे होते, यहाँ अगर हमारे अवामी नुमाइंदे हमारे दर्द का मुदावा करते, तो आज हमें यहाँ पे चंदा कैंप लगाने की नौबत ना आती। बदकिस्मती ये है हमारे पास बहुत सारे इदारे मौजूद हैं सोशल वेलफेयर की शक्ल में भी। अगर हम इनके पास कोई दरख्वास्त ले जाते हैं तो उसके सबसे पहले तो बहुत बड़ा प्रोसेस इनका होता है 2 से 3 महीना। अगर एक बंदा, एक मरीज़ जो है वो सीरियस कंडीशन में है, तो आप क्या समझते हैं कि वो 2 या 3 महीने तक उस मर्ज़ को बर्दाश्त कर सकेगा? ख़ास तौर पर आपका जो है जिगर का मर्ज़ है या आपका कैंसर का मर्ज़ है। तो जिस तरह सिंध में कुछ इस हॉस्पिटल्स होते हैं जो सारे अख्तियारात उनके पास होते हैं, तो बर वक्त उनके पास फ़ंड भी होता है और तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उनकी जो है वो इलाज प्रॉपर तरीके से होता है। अलबत्ता 21 से हमने यहाँ पे कैंप लगाया है। कल हमने दुकानों पे डोर टू डोर यहाँ पे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के शहरों ने जो उनकी बसात थी उन्होंने हेल्प की, मदद की। तो आज भी हम रशीद बलोच जो हमारे नसीराबाद के एक समाजी शख्सियत थे, कुछ साल पहले इन्होंने एक अवामी आवाज़ जो नसीराबाद के खुसूसन बनाई थी, उन्होंने यहाँ के मसाइलों को उजागर किया। तो हमने ये महसूस किया कि आज जो दोस्त हमेशा हमारे मसाइलों को उजागर करते थे, या उनकी टीम साईं भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी उनके साथी रहे हैं, हम भी उनके दोस्त हैं। तो हमने महसूस किया कि आज जो वक़्त, जो हालत, मुश्किल हालत से वो गुज़र रहे हैं, सफ़ेद पोश हैं, अपील नहीं करते, लेकिन ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ था
हमने महसूस किया कि रशीद बलोच को हमारी ज़रूरत है, यहाँ की आवाम की जो है मदद की ज़रूरत है। तो मैं ख़ुसूसन यहाँ पे डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रशीद बलोच की ज़िंदगी या यहाँ पे जितने भी हमारे जो है आपके बलूचिस्तान में कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, पहले तो मैं ये डिमांड करूँगा कि हम कब तक जो है वो चंदे यहाँ पे जमा करते रहेंगे। आपको पता है कि कैंसर जैसा मर्ज़ जो है बहुत महंगा तरीन मर्ज़ है, करोड़ में ये खर्च आता है। अगर हम यहाँ पे डोनेशन करते हैं भी 1 या 2 लाख से ज़्यादा ज़ाहिर है वो जमा नहीं हो सकता। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मा ले ले। यहाँ पे जो लोग मुतासिर होते हैं, जो जो मूजी मर्ज़ में मुतासिर होते हैं, उनके के लिए कोई मुस्तकिल हल निकाले, कोई हॉस्पिटल यहाँ पे जो है वो कैंसर का हॉस्पिटल लगा ले, यहाँ पे जो इदारे हैं उनको एक्टिव करे कि यहाँ पे जो भी मरीज़ हैं वो बर वक्त उनके लिए जो फंड्स रखी जाती है वो इस्तेमाल में लाया जाए। सबसे पहले मैं नए जवानों को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने रशीद बलोच के लिए ये बेड़ा उठाया है, और दूसरे नंबर पर मैं इन मीडिया को खराज तहसीन पेश करूँगा कि हमारे छोटे से आवाज़ को सूबे और मरकज़ तक पहुँचा रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से और मकामी इंतज़ामी कमिश्नर डीसी साहब से और मुखलिया हजरात से, MPA सिकंदर खान उमरानी और मोहम्मद खान लहरी से, कि रशीद बलोच के लिए जितना हो सके एमरजेंसी में जितना हो सके इसके लिए खातर खा इक़दाम किए जाएँ ताकि इसके इलाज मुआवजे में कमी ना हो। हमारे डिवीज़न नसीराबाद के नए जवानों को भी अपील है कि ऐसे प्रोग्रामों को आप लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप ऐसे प्रोग्रामों को छुपाएं नहीं, इस आवाज़ को बुलंद करें। हमारे मुल्क में एक MPA अपने करोड़ों रुपए खर्च करता है अपने एक सीट के लिए। अगर एक गरीब के लिए कोई 50-60 लाख रुपया खर्च करे तो मेरा ख्याल में वो थोड़ी सी चीज़ है। मैं अपना नए जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम भी ज़्यादा कीमती है, उनकी नहीं लेना चाहता हूँ। दोबारा मैं अपने भाइयों को और रशीद बेटे के लिए सबसे अपील करता हूँ, मुखलिया हजरात से जितना हो सके फिलफौर इक़दाम किए जाएँ ताकि उसकी जान बच जाए। ये आमिर गुल थे जो कह रहे थे आए मिलकर हस्बे तौफीक एक मरीज़ रशीद बलोच की मदद करें, आए इंसानियत की खिदमत करें। यहाँ पे सोशल वर्करों ने कैंप लगा है, तो आइए साइंस से कुछ तासरा लेते हैं। शुक्रिया तमाम सोशल वर्कर्स का। गवर्नमेंट के मसाइल अपनी जगह, उसका रोना धोना अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम और बेहतरीन चीज़ ये होती है कि वहाँ के उस माशरे के सोशल वर्कर्स क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं और किस तरह काम करते हैं। सबसे अहम और बेहतरीन चीज़ भी यही होती है कि किसी माशरे के नौजवान मिलकर किसी मसले को उजागर करने के लिए या उसकी असासियत की और संगीनी को महसूस करें। यही वजह है कि यहाँ के सोशल वर्कर्स ने रशीद बलोच के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके माली मसाइल को देखते हुए कैंप लगाया है और उसकी मदद के लिए बेड़ा उठाया है। ये सबसे अहम बात है और अहम बात होनी भी चाहिए। असल में कैंसर एक बहुत बड़ा इशू है जो बलूचिस्तान में बहुत तेज़ी से सरायत करता जा रहा है। इसके लिए ये हो सकता है कि रशीद बलोच का इलाज मरज़ तमाम सोशल वर्कर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो और वे सोचने पर मजबूर हों कि वो दीवार जो धक्कों से नहीं गिर रही उसे हथौड़ों से कैसे गिराना है। तो तमाम सोशल वर्कर इस बारे में सोचें, महसूस करें कि ये जो छोटे छोटे माशरे के छोटे छोटे सोशल वर्कर्स हैं इस जगह इकट्ठे हुए हैं तो क्यों इकट्ठा हुए हैं। उनके इकट्ठा होने की वजह कोई ज़ाती नहीं, कोई माली ख़ानदानी नहीं है, वो किसी और की मदद करना चाहते हैं। इस मदद के एहसास के जज्बे को समझें और महसूस करें, क्योंकि यही सोशल वर्कर हैं जो आम आदमी के लिए लड़ते हैं, इसलिए इनकी मदद करना हम सबका फ़र्ज़ है। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कैंप में मौजूद हूँ, जो यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ जो चंदा बॉक्स में लिखा हुआ है आए मिलकर हस्बे तौफीक एक मरीज़ रशीद बलोच की मदद करें। बिल्कुल इसी तरह है कि ताज बलोच ने भी कुछ ये कमेंट्स दिए थे, बताए थे रशीद बलोच के हवाले से
تھے اعجاز بلوچ نے, سائن نے, عامر بھائی نے. تو ہمارے آج لائیو میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ سوشل ورکر اس طرح موذی مرض میں مبتلا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی ہے اس کی آواز بلند کرنا ہے. میں اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گا کہ خدا را ہمارے جو سوشل ورکر رشید بلوچ نے ایک عوامی آواز شروع کی تھی, اس کی بہت بڑی محنت تھی, اس کی بہت بڑی خدمات تھے, لیکن ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. جتنا ہوا ہے کہ ہم 1-1 روپیہ کر کے اس کی دوائی کے لیے, اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو کریں گے, لیکن جس طرح ہم قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, لیکن ایک حکومت کو چاہیے اس میں اپنا حصہ ڈالے. اس کی جتنی بھی سرکاری طور پر رشید بلوچ کی ٹریٹمنٹ ہو جائے, دوائیاں ہو جائے, تاکہ یہ بہتر ہو کر اپنا یہاں پہ جو ان کی فرائض ہے سر انجام دے. جو آج میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج یہاں پہ بالکل اللہ والا چوک پہ رشید بلوچ کے لیے کیمپ لگایا ہے, زرعی ترقیاتی بینک ڈیرہ مراد جمالی میں بھی یہاں پہ لگایا گیا ہے. تو میں مخیر حضرات سے بھی گزارش کروں گا, ڈیرہ پر خاص کر ڈویژن نصیر آباد کے, ہماری کیمرہ آپ کو پیچھے دکھائیں, اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے, موبی کیش ہے اور UBL جو اکاؤنٹ ہے, جتنے بھی ہیں آپ اس سے رابطہ کریں. آپ اپنی اس میں ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں. تو جس طرح کہتے ہیں کہ انسان کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنا ہے, آج ہمارا سوشل ورکر ایک موذی مرض میں مبتلا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے. اپنا میزبان دل مراد عمرانی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.